every lecture within the 15 minutes यूपीएससी किस नेचर के क्वेश्चंस पूछ रही है। तो फिर आपसे कुछ ही पूछा जा सकता है यूपीएससी के द्वारा, ठीक है। टू द ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप, ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप क्वेश्चन देखिए, अंडर डेवलपमेंट, किसका अंडर डेवलपमेंट, हु, रीजन्स। ज्योग्राफी से हाय हेलो करेंगे, हैंडशेक करेंगे। This is the expectation of the UPSC from the future civil servant. That means you need to prepare yourself in this context. Hi, hello and welcome to all of you, and all we are welcome on this online platform of the 99 Notes, where we do study what? So where we study smart. And from the today onwards, the 99 Notes is going to start the geography conceptual wise lecture series, where we are going to study geography from the GS perspective and also geography from the optional perspective. So again, all we are welcome on this platform, and this is going to be the first lecture in respect of the geography on the 99 Notes. And from here onwards, we are completing our geography in the stage first. We are completing the geography in the GS perspective, and the stage second we are completing a geography from the GS optional perspective. That means the rest portion that we has covered in the geography GS, the rest portion from the geography GS we are going to cover in the geography optional series. So what is the objective? So on the 99notes.com or the 99 Notes IAS, we are going to start, or we have started what? The geography 15 minutes lecture series. That is, in every lecture within the 15 minutes we are clearing at least one of the concept or the part of that one of concept. Why the time frame has been set to the 15 minutes? क्योंकि 15 मिनट पे सेट करने का टाइम फ्रेम केवल इसलिए है कि एक कॉन्सेप्ट का अगर कोई एक पार्ट में इंपॉर्टेंट है तो पहले हम उस पार्ट वाइज उस कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे. इट मे बी प्रोबेबल और देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट द कॉन्सेप्ट मे बी एक्सटेंड टू 15 मिनट्स. सो वी आर कवरिंग इनटू द segments वाइज. दैट मीन्स easy to understand, easy to grasp and easy to produce. So on the 99 Notes, we are starting the geography 15 minutes lecture series, and all we are welcome in this first introductory lecture of the geography 15 minutes lecture series. अगर ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो ये 15 मिनट से ऊपर का ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम ज्योग्राफी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. तो हम ज्योग्राफी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और साथ ही साथ हम सब लोग भी ज्योग्राफी से इंट्रोड्यूस होंगे. और हम ज्योग्राफी से कैसे इंट्रोड्यूस होंगे? सो व्हाट इज द नेचर, the geography subject in respect of the UPSC, and what is the aspiration of the UPSC in respect of the geography as a subject or as a discipline from the civil service perspective. अगर academic purpose से देखेंगे तो geography थोड़ा different हो जाएगा, लेकिन अगर civil servant, aspirant और civil service preparation के perspective से देखेंगे तो geography altogether different हो जाता है. तो हम civil service के perspective से इसको study करने वाले हैं, क्योंकि we are the future civil servant for this nation. तो UPSC क्यों चाहता है कि we should study the geography and how we can make ourselves able to produce effective productivity in respect of the geography as a discipline from the GS perspective and also from the optional perspective. तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या करा है, हमने कॉन्सेप्ट वाइज लेक्चर सीरीज आज से हम 99 नोट्स पर स्टार्ट कर रहे हैं. और पर लेक्चर की ड्यूरेशन हमने एवरेज ड्यूरेशन रखी है. ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 15 मिनट्स में ही लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, बट एवरेज ड्यूरेशन 15 मिनट्स की रहेगी. ये 15 मिनट से कभी कभार कम भी हो सकती है और 15 मिनट से कभी कभार ऊपर भी हो सकती है. जैसे कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो होगा ये ऑलमोस्ट 1 घंटे का होने वाला है. इट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू 1 आवर लेंथ, क्योंकि यहाँ पे हम ज्योग्राफी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन के 2 कॉन्सेप्ट हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के 2 कॉन्सेप्ट वो एस्पायरेंट ईजिली समझ सकते हैं जिनका ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो ऑर्गेनाइजेशन के 2 कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? द फर्स्ट इज द कम्युनिकेशन एंड द सेकंड इज द कोऑर्डिनेशन, एंड बोथ आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर.
जो थिंकर्स है वो भी कंफ्यूज रहते हैं कि पहले किस प्रिंसिपल्स को रखा जाए, दैट मीन्स द कोऑर्डिनेशन को रखा जाए या कम्युनिकेशन को रखा जाए, क्योंकि विदाउट कोऑर्डिनेशन द कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल एंड विदाउट द कोऑर्डिनेशन द कम्युनिकेशन शैल नॉट बी इफेक्टिव, वो इतना प्रभावी नहीं रहने वाला है। तो कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन में इन जनरल कॉन्सेप्ट में कम्युनिकेशन को अब पहले रखा जाता है, क्योंकि अगर वेल इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन होगा तो ही कोऑर्डिनेशन होगा। अगर हम इन दो प्रिंसिपल्स को अपने ज्योग्राफी डिसिप्लिन में एजिमुलेट करते हैं, हम उनको उतारते हैं, तो हम क्या करेंगे, तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर इज ऑल अबाउट इस्टेब्लिशिंग द कम्युनिकेशन लिंक विद द ज्योग्राफी फ्रॉम द सिविल सर्विस पर्सपेक्टिव। ज्योग्राफी सब्जेक्ट को सिविल सर्विस पर्सपेक्टिव से समझने के लिए ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा गया है। इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम ज्योग्राफी को समझेंगे और ज्योग्राफी भी हमको समझेगी और ज्योग्राफी हमको बताएगी लुक दिस इज़ माई नीड, और यूपीएससी हमको बताएगी लुक दिस इज़ माई नीड इन द ज्योग्राफी सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसके बाद ये करेंगे कि हम एक लेक्चर की स्ट्रक्चर को देखेंगे। अगर हम इससे क्लियर हैं कि हम ज्योग्राफी की 50 मिनट्स की लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, 50 मिनट्स की लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो भी हमारे ज्योग्राफी के लेक्चर्स आएंगे हम उसमें ज्योग्राफी के लेक्चर स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे पहले। तो आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो हम समझेंगे कि इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर की स्ट्रक्चर क्या क्या होने वाली है, और जो फॉर्मेट यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा वही फॉर्मेट फिर आगे के फर्दर्स के लेक्चर्स में भी इम्प्लीमेंट होता रहेगा। तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम इस लेक्चर में अभी क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसे इस लेक्चर के स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, तो इस लेक्चर के स्ट्रक्चर में हम पहले ठीक इस स्लाइड के बाद देखेंगे, क्या देखेंगे, PYQs देखेंगे। सर पहले PYQ क्यों देखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें करना क्या है, हमें ज्योग्राफी सिलेबस की स्टडी की तैयारी तो करनी है, और जब तैयारी करनी है तो क्या करनी है, क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में करनी है। क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में हमें अल्टीमेटली अपना आंसर प्रोड्यूस करना है, एक अदद उत्तर चाहिए, वी नीड एटलीस्ट अ प्रोडक्टिव आंसर। तो वो प्रोडक्टिव आंसर देने के लिए अगर क्वेश्चन इज ऑलवेज लार्जर देन द आंसर, तो पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे ना। तो क्वेश्चन के नेचर पे सीधे हम एक्चुअली PYQs का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हम क्वेश्चन के नेचर को ही डायरेक्टली समझने वाले हैं। और इफ वंस वी आर क्लियर विद द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, देन वी विल वेरी in much position to coordinate with the geography, and I have also talked about the communication and the coordination. So the first stage in the communication is the PYQs। हम डायरेक्टली PYQs पे देखेंगे कि यूपीएससी किस नेचर के क्वेश्चंस पूछ रही है। अच्छा, इनको ऑब्जेक्टिव और क्या हो सकता है, तो PYQs को देखने का ऑब्जेक्टिव यह भी है कि जनरली जिन क्वेश्चंस को हम कैटेगराइज कर देते हैं कि ये आर्ट एंड कल्चर का होता है, या पर्टिकुलरली हिस्ट्री का हो सकता है, या आर्ट डिसिप्लिन का हो सकता है, एक्चुअली वो क्वेश्चन ज्योग्राफी का होता है, और हमें उसके बैकग्राउंड में या उसके बैकबोन में जो ज्योग्राफी है उसको समझना होगा। इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है दैट वी आर डायरेक्टली जंपिंग इन द फर्स्ट इंस्टेंस एट दी PYQ। अगर हम PYQs को देख लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ज्योग्राफी के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे फ्रॉम द GS पेपर फर्स्ट पर्सपेक्टिव, और द सिलेबस दैट हैज़ बीन मेंशन इन द GS पेपर फर्स्ट इन द यूपीएससी नोटिफिकेशन। फिर हम उसके सिलेबस को देखेंगे, और जैसे ही हम उसके सिलेबस को देखते हैं, जस्ट आफ्टर द स्लाइड ऑफ द PYQ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बन के ऑटोमेटिकली इमर्ज होगा, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इमर्ज होगा, एनालिसिस एंड द ब्लर्ड साइड ऑफ द किसका, ज्योग्राफी सिलेबस का। हम ज्योग्राफी सिलेबस का एनालिसिस करेंगे और इसके ब्लर्ड साइड, वेग साइड देखेंगे, या ओपेक हम इसकी साइड देखेंगे, और तब हमको पता लगेगा कि नेचर ऑफ द क्वेश्चन and the syllabus that has been mentioned in the UPSC notification is altogether very much different, and when it is different it is 180-degree difference। ठीक है, दो अपोजिट डायरेक्शंस हैं। दैट मीन्स द अंडरस्टैंडिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन while the syllabus is of the west direction, or the understanding of the north direction and the syllabus is moving toward the south direction. This kind of the nature and the combination, the relationship between the GS syllabus in respect of the geography is there in the UPSC notification in respect of geography syllabus. Then we are going to jump on the developmental stages of the what the developmental stages the geography has faced। geography के एज ए डिसिप्लिन में एक सब्जेक्ट के रूप में उभरने के लिए उसकी कौन कौन सी स्टेजेस रही हैं, और उन स्टेजेस में geography ने अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म किया है, हम उसके स्टेजेस को देखेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमैनिटीज टीम। geography
which is generally considered to be the physical subject. Geography which is generally considered to be the physical subject. Physical subject कैसे? जब भी हम geography के बारे में सोचते हैं या सुनते हैं या समझते हैं तो हम क्या समझते हैं? हम स्पेस को समझते हैं, हम अर्थ को समझते हैं, हम इसके लैंडफॉर्म्स को देखते हैं, पर्वत को देखते हैं, पठार को देखते हैं, मैदान को देखते हैं, और इन्हीं सब की इमेजेस को हम अपने माइंड में रखकर हम ज्योग्राफी को कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं। लेकिन ज्योग्राफी अपने फिजिकल फॉर्म या फिजिकल नेचर से बहुत आगे एक ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है। आज हम इसको प्रूफ करेंगे, और अगर हम ये प्रूफ कर जाते हैं अपने कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन में तो फिर हम ज्योग्राफी समझ लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। ज्योग्राफी को इतना हार्ड एंड फास्ट या रॉकेट साइंस कैसा है तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर आपने किसी सब्जेक्ट के नेचर को समझ लिया है, देन ओनली यू आर केपेबल टू अंडरस्टैंड दैट सब्जेक्ट इन टोटलिटी। इन टोटलिटी मीन्स देन यू आर एबल टू प्रोड्यूस योर प्रोडक्टिविटी। करेक्ट। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? ज्योग्राफी का इंटरकनेक्शन देखेंगे विद द अदर डिसिप्लिन्स। अगर ये ह्यूमैनिटी स्ट्रीम्स के साथ है तो ह्यूमन की नीड क्या है? ह्यूमन की नीड लैंड से भी है, ह्यूमन की नीड वाटर से भी है, ह्यूमन की नीड रिसोर्सेज से भी है, ह्यूमन की नीड सोसाइटी से भी है, ह्यूमन की नीड साइंस से भी है, ह्यूमन की नीड आर्ट से भी है, ह्यूमन की नीड इकोनॉमिक्स से भी है, ह्यूमन की नीड वेरियस अदर डिसिप्लिन से है। और अगर ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट ज्योग्राफी ट्रांसफॉर्म हो गया है तो दैट मीन्स इट इज़ एड्रेसिंग द ह्यूमैनिटी, और अगर वो ह्यूमैनिटी को एड्रेस कर रहा है तो दैट मीन्स ज्योग्राफी ओवरलैपिंग विद द अदर स्ट्रीम्स एज वेल। वो कौन कौन सी स्ट्रीम्स है जिनके साथ ज्योग्राफी ओवरलैप कर रहा है, और उन्हीं ओवरलैपिंग स्ट्रीम्स के साथ यूपीएससी अपने क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जब यूपी अपने क्वेश्चन अपने इन ओवरलैपिंग स्ट्रीम्स के साथ पूछ रहा है, तभी तो हमने कहा ज्योग्राफी के सिलेबस का एनालिसिस करके उसके ब्लर पॉइंट को बाहर निकाल के आएंगे। और आज से हम ज्योग्राफी को एक फिजिकल फॉर्म के रूप में सब्जेक्ट में तो अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन उसके हॉराइजन्स को बढ़ाते हुए एक्चुअली में उसकी आउटर पेरिफेरी को हम ह्यूमैनिटी से कनेक्ट करने वाले हैं। उसके बाद हम क्या देखेंगे? ज्योग्राफी का सेक्शनल डिवीजन देखेंगे। ज्योग्राफी का सेक्शनल डिवीजन क्यों देखेंगे? यहाँ पर आपको ज्योग्राफी का सिलेबस नहीं मिलेगा, तो फिर ज्योग्राफी का सिलेबस, एग्जैक्ट सिलेबस, 100% सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा? तो 100% सिलेबस आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस में मिलेगा जो यूपीएससी ने मेंशन कर रखा है। वहाँ से हम इसका सेक्शनल डिवीजन करेंगे, विच सेक्शंस आर इंपॉर्टेंट फॉर द ज्योग्राफी जीएस एंड विच सेक्शंस आर इंपॉर्टेंट फॉर द ज्योग्राफी ऑप्शनल, एंड विच सेक्शंस हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द जीएस एंड द ऑप्शनल, एंड हाउ वी नीड टू सेग्रीगेट बिटवीन दोज सब सेक्शंस, whether it is section particularly dominated to the geography GS or the particular section dominated by the geography optional, or the particular section has the combination of both with the 50-50 percentage. That's in deep we are going to look and the analysis and analyze, and then in the last we are going to study the approaches to the study. What approaches to the study of the geography the 99 notes is being adopted, so you must be able proficiently to produce a productivity with the 100%, right? So the 99 notes is actually introducing its strategy in respect of the geography. And नमस्कार, मैं हूँ चंद्रशेखर, आपकी ज्योग्राफी की फैकल्टी ऑन 99 नोट्स पर। अब हम क्या करते हैं? तो अब हम डायरेक्टली पहुँचते हैं अपने PY स्किल्स पे। तो पहली स्लाइड जो PY स्किल्स की आ रही है वो यह है, What are the economic causes of the underdevelopment of the various regions in India? Important terminologies कौन सी है जिनको हम हाईलाइट करेंगे? Economic causes of underdevelopment of the various regions, right? In the first instance, an aspirant could understand that this is the question from the economic backgrounds. No, this is the question from the geographical backgrounds, because What are the causes? Causes के रूप में इकोनॉमिक्स पूछ रहा है, ये फाउंडेशन नहीं हो सकता। अंडर डेवलपमेंट, किसका अंडर डेवलपमेंट? हु? रीजन्स। जब हु के आंसर में रीजन आ रहा है, दैट मीन्स द क्वेश्चन इज रिलेटिंग फ्रॉम द ज्योग्राफी। अगर क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेट कर रहा है तो वो क्या पूछ रहा है? वेरियस रीजन्स पूछ रहा है। दैट मीन्स द वेरियस ज्योग्राफिकल रीजन्स, फॉर एग्जाम्पल वी हैव द ज्योग्राफिकल रीजन सच एज द बुंदेलखंड इन द यूपी एंड द एमपी बॉर्डर एरियाज, ठीक है? तो वो जो बुंदेलखंड का जो रीजन है वो क्यों अंडर डेवलप्ड रह गया है, या क्यों बिहार ही लेबर फोर्स या ईस्ट इंडिया लेबर फोर्स से सप्लाई करेगा, या ईस्टर्न यूपी लेबर फोर्स सप्लाई करेगा किसको?
सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया को। तो ऐसे क्या रीजन है कि इनके अंडर डेवलपमेंट रह गया है, उस अंडर डेवलपमेंट में 4 रीजन सामने होते हैं बेसिकली। तो पहला रीजन कौन कौन सा होता है? पहला रीजन होता है पॉलिटिकल, दूसरा होता है सोशल, तीसरा होता है इकोनॉमिकल और चौथा होता है टेक्निकल। ये हमारे पास 4 पिलर्स ऑफ रीजन हैं कि इन रीजन्स में से कोई, फिर इनके सब रीजन्स रहते हैं हमारे पास। तो जो 4 पिलर्स ऑफ रीजन्स हैं उनमें से एक रीजन पूछा गया है इकोनॉमिक कॉजेज। तो जो रीजन है पर्टिकुलरली उसका अंडर डेवलपमेंट के कई सारे कॉजेज हैं, उन कॉजेज में से इकोनॉमिक फैक्टर्स को आपको बताना पड़ेगा। दैट व्हाई द बुंदेलखंड इफ इट इज नॉट बीइंग डेवलप्ड और बुंदेलखंड इज अंडर डेवलपमेंट रीजन, सो व्हाट आर द इकोनॉमिक कॉजेज। तो बुंदेलखंड की पूरी ज्योग्राफी के साथ उसके इकोनॉमिक कॉजेज को रिलेट करके इस क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, the next question is write a short note on the linguistic region of India. Linguistic region. Now this question is 100% in the first assumption is related to the art and the culture, but actually this question also related to the geography, because on every region if a particular kind of accent or particular language is being spoken, then we need to tell the geographical effect in that perspective. जोग्राफिकल इफेक्ट। और सर्टेनली जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो करंट अफेयर्स का कोई ना कोई क्लॉज यहाँ पर रहा होगा, तो उसी को ध्यान में रखकर ये क्वेश्चंस पूछा गया है। आगे आते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द equinox. Now this is completely a geographical phenomena question. No other discipline is overlapping in this question. इस क्वेश्चन को प्योर रूप से आप ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में रख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी अदर डिसिप्लिन इसके साथ ओवरलैप नहीं कर रहा है। आगे की ओर आ जाते हैं। तो जब हम इक्विनॉक्स को देखेंगे तो एक्चुअली जब हम इसके रेवोल्यूशंस को पढ़ेंगे, अर्थ के रेवोल्यूशन को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हमें इक्विनॉक्स का आंसर मिल जाएगा, जिसमें एक्सिस का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल या एक्सिस इंक्लाइनेशन का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल वहाँ पे प्ले करेगा इक्विनॉक्स। तो अगला इक्विनॉक्स कब आने वाला है? तो अगला इक्विनॉक्स आने वाला है 21 मार्च को। तो इक्विनॉक्स कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, 21 मार्च को क्यों आएगा, ये पूरा ज्योग्राफिकल फेनोमेना का क्वेश्चन है। तो ज्योग्राफी की जो इमेज हमारे पास, जो फिजिकल फेनोमेना की जो इमेज है, फिजिकल एज ए फिजिकल डिसिप्लिन के ज्योग्राफी की जो इमेज है, उससे ये क्वेश्चन निकल कर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमको समझ में नहीं आता कि ये क्वेश्चन एक्चुअली में आ कहाँ से रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन एक्चुअली में ज्योग्राफी के डिसिप्लिन बैकग्राउंड से ही आ रहा है। कैसे आ रहा है समझिए। मॉनसून, we know it is a season in India. So monsoon is known to be the energy. Energy is a kind of resource. Energy is a kind of resource. And what is the definition of the resource? The definition of the resource is which is satisfied your need. It is actually a resource for you. Potential resource, the resource of the future. So resource is that is satisfying your need. In simplest word, the things or the services that is satisfying your need is actually a resource for you. Whether it could be a relation, if the relation is satisfying your need, actually a resource for you. You people are also the resource for your parents. हम अपने माता पिता के लिए भी रिसोर्स है, तभी तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमको जो उच्च शिक्षा दिए जा रहे हैं, वो चाहते हैं ना कि हम कुछ बनकर तैयार हो जाएं, तो वो ऐसा रिसोर्स क्रिएट करना चाहे जिससे उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि तुम ह्यूमन रिसोर्स के रूप में कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाओ कि तुम सेल्फ सस्टेन हो जाओ। यही हमारे लिए बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी इज अ काइंड ऑफ द रिसोर्स। मॉनसून इज ए सीजन। Monsoon is known to be the energy released by the sun. This is the most important terminology of this question. Released by the sun. Who is releasing? Sorry, released by the sea. Who is releasing? Sea. Sea is a water body. So here from the geographical aspect, the energy that has been released by the water body, we need to tell about the mechanism of the monsoon. Here we need to tell about the mechanism of the monsoon, that is the origination of the monsoon and it's coming to the Indian subcontinent. यहाँ पे हम इसको mechanism बताना है, इसको हमको resources से attach करना है। फिर second part देखते हैं, how does this energy benefits? That means this energy is benefiting to what? The entire economic system of our country. And what is economics? If we go into the simplest definition of the economy, the priority of the resources is just economics based on the principles of the demand and supply. डिमांड और सप्लाई के प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं जो रिसोर्सेज को प्रायोरिटाइज करते हैं, तो ये इकोनॉमिक्स है। एग्जाम्पल के लिए, आपकी फैमिली इनकम 50,000 पर मंथ की है, 50,000 पर मंथ की है, लेकिन आपके एक्सपेंसेस इस महीने 75,000 पर मंथ के आ रहे हैं।
तो जब माता पिता या मम्मी पापा साथ में बैठेंगे तो वो डिस्कस करेंगे कि भाई क्या क्या होना है। पैसे 50,000 हैं, खर्चे इस महीने के 75,000 हैं। तो मम्मी क्या बोलेंगी, माता जी क्या बोलेंगी, देखो सुनो ऐसा करते हैं, ये काम करते हैं, ये अगले महीने रखते हैं। फिर उसमें से थोड़ा डिस्कशन पिताजी की ओर से आता है, वो कहते हैं ये काम करते हैं, ये काम करते हैं। और फाइनली जो काम की लिस्ट सामने निकल के आती है उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, क्योंकि रिसोर्सेज को प्रायोरिटाइज करा जाता है। कुछ प्रायोरिटाइज के रिसोर्सेज मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे स्कूल की फ़ीस, बच्चों पे जो होने वाले एक्सपेंडिचर हैं उनको प्रायोरिटी पे रखा जाता है, और माता पिता अपने ऊपर या जिनकी लेस इंपॉर्टेंस है एक्सपेंडिचर्स की उनको लास्ट में रखते हैं। बस दिस इज इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स किस बात पर निर्भर कर रही है, क्योंकि डिमांड कितनी है 75,000 की, सप्लाई कितनी हो रही है 50,000 की। जो डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है, इस मिसमैच के बीच में जो हम रिसोर्सेज को प्रायोरिटाइज करते हैं, यही इकोनॉमिक्स है। यही इकोनॉमिक्स का बेसिक फंडा है। वो क्या कह रहा है, द एंटायर इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ आवर कंट्री if we don't have the normal monsoon through its mechanism, it will affect also negatively the entire economic system of the country. If it is going to affect the entire system negatively, then the third portion says what? The third portion is asking of this question, in what way could this country prepare itself? In what ways could this country prepare itself? Prepare itself यानी कि तैयार करना। That means कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है unusual जिसके लिए तैयार होना है। Prepare itself with the vagaries of the monsoon, and this is the term, vagaries of the monsoon. That means the year when we don't have the average or more than the average monsoon, then we have the vagaries, that means the negative repercussion of the deficient monsoon. If there is a deficient monsoon, then the question and the aspiration, the expectation has been asked to the state, how the state could prepare itself to fight over the vagaries of the deficient monsoon rainfall. ठीक है, मानसून का मैकेनिज्म है, उसके बेनिफिट्स हैं, और अगर वो ठीक प्रकार से मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा है तो उसके क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट होंगे, इसको लेकर बात करी जाएगी। लेकिन बात किस पर्सपेक्टिव में हो रही है, बात मानसून के पर्सपेक्टिव में हो रही है। जब बात मानसून के पर्सपेक्टिव में हो रही है तो क्वेश्चन ज्योग्राफी से निकल के आता है, क्योंकि क्वेश्चन की जो बैकबोन है वो मानसून और उसका मैकेनिज्म है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हमारी क्वेश्चंस की या पीवाईस की फर्स्ट स्लाइड होगी। अभी हम इसे 2 स्लाइड्स और देखेंगे ताकि हम अपने आप को वेल फर्निश्ड फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर सकेंगे ज्योग्राफी से। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम ज्योग्राफी का सिलेबस देखेंगे। एंड दिस इज द सिलेबस, द 5-point सिलेबस दैट हैज बीन मेंशन्ड इन द यूपीएससी नोटिफिकेशन थ्रू द यूपीएससी इन द पेपर फर्स्ट। दैट मीन्स द एवरी पॉइंट इज ऑफ द वेटेज ऑफ द 20%. Now, the first 20% says the salient feature of the world physical geography. Salient feature of the world physical geography. Important features आपको किसके, फिजिकल ज्योग्राफी के बताने। इससे वर्ल्ड भी आ जाएगा। जो हमने फिजिकल फॉर्म ज्योग्राफी की अपने माइंड मैपिंग में कर रखी है, दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द 20% वेटेज इज डीलिंग विद दैट कॉन्सेप्ट और द माइंड मैपिंग। क्या बताने, वर्ल्ड के फिजिकल ज्योग्राफिकल फीचर बताने सेलिएंट। देन डिस्ट्रीब्यूशन द की नेचुरल रिसोर्सेज, वर्ल्ड में कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज है, उनके क्या क्या रीजन्स हैं और डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको ही बताना। ये भी 20% का वेटेज हो गया। करेक्ट, यहाँ तक बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है। ये हमारे पास ज्योग्राफी के कंपोनेंट रहते हैं। आगे आइए, द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ द प्राइमरी, सेकेंडरी, द टर्शियरी। अब किसकी बात आ रही है, लोकेशन की बात आ रही है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में ही टाटा स्टील क्यों लगाई। अगर हम उस केस स्टडी को लेके आगे की ओर बात करेंगे तो पूछ रहे हैं कि अगर हम इस केस स्टडी को अपने बैक माइंड में रखते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में रखते हैं उसकी केस स्टडी को, तो उस केस स्टडी को ध्यान में रखते हुए अगर हम उस पर क्वेश्चन फ्रेम करते हैं का फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ द टाटा स्टील और द प्राइमरी, सेकेंडरी, द टर्शियरी इंडस्ट्रीज द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। तो हम केस स्टडी में रखेंगे तो हम पूछेंगे भाई जमशेदजी टाटा ने जमशेद नगर में ही टाटा स्टील को क्यों लगाया। तो जब उसके फैक्टर्स निकल के आते हैं तो वही सारे के सारे फैक्टर्स हमको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इंडस्ट्री में लगाने हैं। और ये हो गया आपका 20% का वेटेज। यहाँ तक आपका हो गया 60%। इस 60% में 40% का कैटेगराइजेशन आपका माइंड मैप में था ज्योग्राफी को लेकर। 20% का आप इसको इकोनॉमिक्स से भी रिलेट कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स ओवरलैपिंग करेगी यहाँ पर। लेकिन हो सकता है कुछ इसको एस्पायरेंट इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं कि भाई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल ऑफ द लोकेशंस। इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, इंडस्ट्रीज का तो पूरा एक सिलेबस है इकोनॉमिक्स में।
तो दैट मीन्स दिस पोर्शन इज ओवरलैपिंग विद द इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल, ज्योग्राफी टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करी गई है, जियोफिजिकल, फिजिकल फॉर्मेट में आ रहा है क्वेश्चन। द इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेना सच एज द अर्थक्वेक, फर्स्ट एक जियोफिजिकल फेनोमेना अर्थक्वेक, दूसरा सुनामी, तीसरा वॉल्केनिक एक्टिविटी, चौथा साइक्लोन और पांचवा हो गया ईटीसी एक्सेट्रा। और इसमें सारा का सारा खेल खेला जाएगा, इसका कोई लिमिटेशंस नहीं है। ये एक्स्ट्रा वर्ड जो होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, जो अदरवाइज वर्ड होता है, ये बड़े घातक शब्द हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, अदरवाइज और ज्योग्राफी या किसी भी डिसिप्लिन में एक्सेट्रा। ये इतने घातक शब्द है कि ये हॉराइजन्स को स्काई इज द लिमिट में एक्सपेंड कर देते हैं, और जहाँ पर फिर आपसे कुछ ही पूछा जा सकता है यूपीएससी के द्वारा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन इन क्रिटिकल geographical features and their location in the critical geographical features including water bodies and the ice caps and in flora and fauna and their effect of the such changes। इफेक्ट पूछे गए हैं such changes के, किस changes के, geographical features and their locations के, features and their locations के। यहाँ पे इंडस्ट्री की लोकेशन पूछी गई है, वहाँ पे geographical features पूछे गए हैं, और यहाँ पे salient feature of the world geography के पूछे गए हैं, यानी कि ये भी इससे रिलेट करेगा और ये भी इससे रिलेट करेगा, और ये बनता है आपका नेक्स्ट 20% का वेटेज। और यहाँ तक हमने कवर कर लिया है ऑलमोस्ट, और यहाँ तक हमने कवर कर लिया है पूरा का पूरा 100%। और इन 5 पॉइंट्स में पूरा का पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस दी एंड हो जाता है। स्टार्ट तो होने की बात हमारी दूसरी थी, यहाँ पे दी एंड हो गया पूरा का पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस। जब ज्योग्राफी का सिलेबस पूरा का पूरा दी एंड हो गया है, अब अगर हम रेफरेंस से ड्रॉ करने की बात करेंगे, if we now talked about the reference in the context of the first slide, that is the PYQ, तो कोई अंडरस्टैंडिंग क्या हम लोगों की बनती है कहीं से कहीं तक भी? क्या कोई अंडरस्टैंडिंग हम लोगों की बनती है कहीं से कहीं तक भी? What is the nature of the question and what is the syllabus of the subject from the UPSC perspective? एकेडमिक्स की तो बात हो नहीं रही ना यहाँ पर। सिविल सर्वेंट एस्पायरेंट को लेकर ज्योग्राफी यूपीएससी चाहते हैं कि आप पढ़ें, तो उसकी जो एस्पायरेशन है कुछ अलग टाइप्स है। अब ये हमारे पास PYQs हैं जो हमने फर्स्ट स्लाइड में स्टडी करी थी, और ये हमारे पास ज्योग्राफी के सिलेबस की स्लाइड है। अब कुछ रेफरेंस ड्रॉ हो रहा है क्या कि जो सोचा था वो मिला, या कुछ ऐसा लग रहा है कि जो सोचा था वो तो मिला नहीं, उससे कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, और जो मिल रहा है उसका कुछ पता नहीं। करेक्ट है? अगर ये बात करेक्ट है तो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, और जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम उसके देखते हैं PYQ उसकी सेकंड स्लाइड, और सेकंड स्लाइड में कुछ और विचित्र बातें आती हैं। क्या बोलता है भाई? ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। सॉरी, अब देखना सिलेबस, इसमें IMD कहाँ स्टडी करना है हमको? जियोफिजिकल फेनोमेना है, कोई फिजिकल बॉडी की बात कौन सा हुई है? IMD इज ए फिजिकल बॉडी, गवर्नमेंट इनिशिएटिव से इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के फंक्शंस बताने हैं। इसमें कोई ज्योग्राफिकल फेनोमेना या ज्योग्राफिकल इंसिडेंट्स के बारे में पूछा गया? नहीं पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिंग आउट द कॉजेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द हीट आइलैंड इन द अर्बन हैबिटेट। ध्यान रखिएगा, हीट आइलैंड क्वेश्चन किससे रिलेट करता है? अर्बन टाउन प्लानिंग से। किससे? टाउन प्लानिंग। अगर टाउन प्लानिंग अप टू द स्टैंडर्ड, दैट मीन्स नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देन द अर्बन प्लानिंग इज क्रिएटिंग द हीट आइलैंड। हीट आइलैंड जहाँ पर कंक्रीट के जंगल हम खड़े कर रहे हैं, कंक्रीट के फॉरेस्ट हम खड़े कर रहे हैं, इस फॉरेस्ट को हटाकर जब हम यहाँ पे बिल्डिंग्स खड़ी कर देते हैं तो वो क्या बनते हैं? वो हीट आइलैंड बन जाते हैं। और हीट आइलैंड कौन बना रहा है? ह्यूमन बीइंग बना रहा है। अब फिर से एक बार सिलेबस देख लेते हैं, कोई रेफरेंस मिलता है हमें इस क्वेश्चन का? इसमें कहीं से भी कहते हैं कि इसमें ह्यूमन फैक्टर्स की बात करी गई हो। सारा जियोफिजिकल और ज्योग्राफी के लिए है माइंड मैप को लेकर, यहाँ पे ह्यूमैनिटी की तक बात ही नहीं हो रही है। और ये क्वेश्चन पूरा का पूरा ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव में है, क्योंकि ह्यूमन हैबिटेट की बात हो रही है। ह्यूमन हैबिटेट से अलग जो भी हैबिटेट्स बनते हैं, कोई भी बनाए, वो सांप बनाए, अजगर बनाए, शेर बनाए, चीता बनाए, हाथी बनाए, जो ही बनाए, दे आर इन द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द नेचुरल साइकिल। वो नेचर को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो नेचर को डिस्टर्ब कौन कर रहा है? ये सबसे बड़ा जानवर कर रहा है। और अगर सबसे बड़ा जानवर कर रहा है तो जानवर क्या क्रिएट कर रहा है?
हीट आइसलैंड क्रिएट कर रहा है, एंड दैट हीट आइसलैंड इज पोजिंग अ थ्रेट टू द प्रेजेंट सिविलाइजेशन एंड द अपकमिंग फ्यूचर सिविलाइजेशन. एंड इफ वी आर गोइंग इनटू द एनवायरमेंटल डिसबैलेंस, then the civilization will be diminished. Next question देखिए, how far do you agree that the behavior of the Indian monsoon has been changing due to the humanizing landscape? Humanizing landscape क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा मैकेनिज्म ऑफ द मानसून, जो हमने पहली स्लाइड में तैयार करा था. यहाँ पे कुछ जियोफिजिकल फेनोमेनास पूछे गए, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी. इसमें मानसून या वाटर बॉडीज को लेकर बात नहीं हुई है. वाटर बॉडीज को लेकर बात कहाँ पर हो रही है? यहाँ पर हो रही है सारी की सारी बात. इतना वेग ज्योग्राफी का सिलेबस है कि यूपीएससी और क्वेश्चन ऑफ नेचर के बीच में आप मैच ही नहीं कर पाएंगे. तो क्या वहाँ पे जानकार लोग नहीं है या सिलेबस को ऐसी गलती से रख दिया गया? नहीं, जानबूझ के रखा गया, जानबूझ कर रखा गया. दैट मीन्स यू शुड बी द इन्वेस्टिगेटिव एस्पायरेंट. आप ज्योग्राफी को इन्वेस्टिगेट करेंगे, एक्चुअली ज्योग्राफी आ कहाँ से रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन द हाई प्रायोरिटी टू व्हाट? हाई प्रायोरिटी टू द ऑयल सीड डेवलपमेंट. हाई प्रायोरिटी टू द ऑयल सीड डेवलपमेंट. ऑयल सीड फूड सिक्योरिटी को लेकर या फूड इंडिपेंडेंस को लेकर या सेल्फ रिलायंट होना, इन तीनों ही क्लॉजेस में ये बात फिट बैठती है. दैट द गवर्नमेंट हैज गिवन द हाई प्रायोरिटी टू द ऑयल सीड डेवलपमेंट प्रोग्राम. व्हाट स्ट्रेटेजी? नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, स्ट्रेटेजी मीन्स समथिंग हैज बीन थॉट अपॉन, और थॉट प्रोसेस और द टाइम हैज बीन गिवन on that particular thinking or that particular cause has been adopted to accelerate त्वरण करना, multiplication करना in growth. the efforts on increasing, efforts किस लिए करने हैं? increase करना है किसका? production. ऑयल सीड का प्रोडक्शन करना है. जब हम ऑयल सीड का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ऑयल सीड का प्रोडक्शन क्यों करेंगे? सेल्फ रिलायंट होने के लिए करेंगे, फूड सिक्योरिटी के लिए कर सकते हैं, इंडिपेंडेंस के लिए कर सकते हैं, ताकि फॉरेन रिलेशन की डिपेंडेंसी या फॉरेन रिलेशन को आइडेंटिफाइड करा जा सके. अगर किसी कंट्री पर हमारी ऑयल सीड की डिपेंडेंसी है तो उसकी पॉलिसीज़ को हमें चाहते हैं ना चाहते हुए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो करने की स्थिति में आ सकते हैं. लेकिन अभी भारत में ही फूड सिक्योरिटी को हमको इंश्योर करना है, बिकॉज वी आर हैविंग द 1.4 बिलियन पॉपुलेशन. तो इन तीनों एस्पेक्ट्स में ऑयल सीड डेवलपमेंट को हम बात लेकर आगे करने वाले हैं. क्या ऑयल सीड डेवलपमेंट सस्टेनेबल एनवायरनमेंट से भी कनेक्ट हो सकता है? क्या फूड हैबिट जो चेंज हो रही है उसको एड्रेस करने के लिए ऑयल सीड डेवलपमेंट को क्रिएट करा जा रहा है? क्या जो ऑयल में मिक्सिंग हो रही है, क्योंकि ऑयल की डिमांड अधिक है, उसकी सप्लाई कम है, दैट्स व्हाई द प्राइसेस आर हाई. तो क्या कारण है? इन सारे डिसिप्लिन के साथ ओवरलैप करके ये क्वेश्चन तैयार करा गया है, क्योंकि नेक्स्ट जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो इसको डिफाइन कर देता है. नेम द इंपॉर्टेंट ऑयल सीड कल्टिवेटेड इन इंडिया. ऐसे कौन कौन से ऑयल सीड हैं जो भारत में उगाए जाते हैं विद देयर डिस्ट्रीब्यूशन. और जैसे डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है वो आपसे इंडियन रीजन्स की इंफॉर्मेशन ले लेता है, एग्रीकल्चर रीजन की. हमारे पास एग्रीकल्चर रीजन है ना, तो एग्रीकल्चर रीजन की आपसे अंडरस्टैंडिंग मांगी गई है, भारत को ऑयल सीड डिस्ट्रीब्यूशन मांगा गया है, और फिर उन एग्रीकल्चर रीजन का कैसे हम डेवलपमेंट करें इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑयल सीड कि पहला क्वेश्चन क्लियर हो जाए. PYQs की फर्स्ट साइड का पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ द अंडर डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस रीजन. अगर वहाँ पे ऑयल सीड डेवलपमेंट का पोटेंशियल है दैट मीन्स वो सोर्स की तरह काम करेगा, एनर्जी की तरह काम करेगा. और अगर पोटेंशियल है तो वहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स होंगे, एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट होगा. एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट होगा तो क्या होगा? प्राइमरी इंडस्ट्री वहाँ पे डेवलप हो सकती है. प्राइमरी इंडस्ट्री कहाँ पे डेवलप होगी? तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज के रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स पूछे गए हैं प्राइमरी इंडस्ट्री को लेकर. और अगर प्राइमरी इंडस्ट्री डेवलप होगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा. और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कनेक्ट होगा? वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला कनेक्ट होगा, इट वाली स्लाइड का. द स्मार्ट सिटीज कैन नॉट इंडिया सस्टेन विदाउट द स्मार्ट विलेजेस. डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन द बैकड्रॉप ऑफ द रूरल अर्बन इंटीग्रेशन. रूरल अर्बन इंटीग्रेशन करना है तो आपको उस ऑयल सीड डेवलपमेंट रीजन का ऑयल सीड के पर्सपेक्टिव से डेवलपमेंट करना पड़ेगा. तो वहाँ पे इकोनॉमिक कॉजेज को आप डेवलप्ड अंडर डेवलपमेंट से डेवलपमेंट की ओर नॉरिश करेंगे, और जब नॉरिश करेंगे
तो स्मार्ट सिटी सस्टेनेबल होंगी, क्योंकि दिल्ली में जो पॉपुलेशन है, जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन बन रही थी, वो आके दिल्ली में रिसाइड करती है और दिल्ली पर एक अनवांटेड डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी का बर्डन उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नीचे की ओर ले डाउन कर रहा है वो रिलीज हो जाएगा, और इस प्रकार से सिटीज़ और सस्टेनेबल हो जाएंगे, क्योंकि हम रीजनल इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये एस्पेक्ट कहीं से कहीं तक भी सिलेबस में मिल रहे हैं कि हमको, अरे गजब, सिलेबस में तो नहीं मिल रहे, तो सर कैसे होगा? तो सर अभी होगा, पहले 2-3 क्वेश्चंस और देख लेना है। राइट अ ब्रीफ बट प्रिसाइज नोट ऑन द सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है। कन्वेक्शंस करंट है, लावा मैग्मा का बाहर आना है, सी फ्लोर का स्प्रेड करना है, अटलांटिक ओशन का सी फ्लोर जो स्प्रेड कर रहा है, पैसिफिक ओशन का कॉन्टैक्ट कर रहा है, उसको लेकर ज्योग्राफी का पूरा कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हमें ज्योग्राफी की इंटरनल स्ट्रक्चर और फिर इंटरनल स्ट्रक्चर में उसके वेरियस लेयर की स्टडी करनी पड़ेगी, डेंसिटी डिफरेंशिएशन की स्टडी करनी पड़ेगी, टेम्परेचर का डिफरेंस का स्टेशन डिफरेंस की स्टडी करनी पड़ेगी, उस डेंसिटी और टेम्परेचर डिफरेंशिएशन से कौन से एंडोजेनेटिक फोर्सेस बनते हैं, उस एंडोजेनेटिक फोर्सेस से अर्थ की क्रस्ट पर क्या क्या डेवलपमेंट या क्रिएशंस हो रहे हैं, जिसको हम कंस्ट्रक्टिव फोर्स बोलते हैं। इफ वी हैव द कंस्ट्रक्टिव फोर्स, दोस कंस्ट्रक्टिव फोर्स आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द सी फ्लो स्प्रेडिंग। दिस इज the cause we need to look into the study. सही है? We look into the need to the study of those endogenetic forces which are causing the sea floor spreading. जो sea floor का spread हो रहा है उसमें उसके कौन से endogenetic अंतरजातीय बल है जिनको स्टडी करना पड़ेगा। कंप्लीटली ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कोई इसमें डाउट होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where do we find that large desert area? Important क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या डेजर्ट का भी डेवलपमेंट हो सकता है? लार्ज डेजर्ट एरिया in India, and the what step has been taken by the government for their development? Development means now the development has the approach of the horizontal. Yes, if the development has the approach of the horizontal, that means the various aspect needed to develop in one of the aspect. अब हम पहली स्लाइड पे चलते हैं और पहली स्लाइड क्या पूछ रही थी? द इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ द रीजनल डेवलपमेंट। अब आ जाओ इस पर, ठीक है। किधर गया? हाँ ये वाला, ठीक है। डेजर्ट एरिया का डेवलपमेंट करना है, डेजर्ट एरिया का डेवलपमेंट करना है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज डेवलप होंगी। जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज डेवलप होंगी तो डिमांड एंड सप्लाई का खेल स्टार्ट होगा। जब डिमांड और सप्लाई का खेल स्टार्ट होगा तो फिर प्रायोरिटी ऑफ द रिसोर्सेज होंगी। जब प्रायोरिटी ऑफ रिसोर्सेज होंगी तो इंडस्ट्रीज वहाँ पे स्टैब्लिश करी जाएंगी, क्योंकि जब डिमांड जनरेट होगी तो रिसोर्स भी तो उसके हिसाब से प्रायोरिटाइज तो करा जाएगा। तो डेजर्ट एरिया का जब डेवलपमेंट हो जाएगा तो हमने कहा डेजर्ट एरिया क्या है, व्हाट आर द डेजर्ट एरिया? तो द एरिया विच इज रीजन एट मैक्सिमम अप टू द 25 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली, नॉट मोर देन दैट हैज बीन कैटेगराइज्ड एज ए डेजर्ट। और इंडिया में दो प्रकार के डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट एंड हॉट डेजर्ट। कोल्ड लद्दाख, हॉट यानी कि वेस्टर्न राजस्थान। तो डेजर्ट ऐसा नहीं है केवल वहाँ पे रेत ही आपको मिलेगा, सैंड ही मिलेगी। डेजर्ट में कुछ ही मिलेगा, लेकिन जो रेनफॉल मिलेगा वो नहीं मिलेगा। वो आपको मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर से ऊपर का एनुअली आपको नहीं मिलेगा। दैट इज कैटेगराइज्ड एज ए डेजर्ट। एंड where do we find the large desert in India? That is the Western India and the Ladakh. And what step has been taken by the government for their development? क्या यहाँ पर हम सैंड टूरिज्म को डेवलप कर सकते हैं, लद्दाख में हमें स्नो टूरिज्म को डेवलप कर सकते हैं। जैसे टूरिज्म डेवलप होगा तो आपको ट्रांसपोर्टेशन लेना पड़ेगा, आपको वहाँ पे होटल्स की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ पे ऑलरेडी आपको इस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी। लद्दाख में एक्चुअली अब यही हो रहा है जब से जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रोथ सेंटर। हमने बुंदेलखंड की बात करी थी। अगर बुंदेलखंड का हमको रीजनल डेवलपमेंट करना है, दैट मीन द बुंदेलखंड हैज बीन कैटेगराइज एज ए ग्रोथ सेंटर। और अगर पूरे भारत में ग्रोथ सेंटर सपोज करो 28 स्टेट है, 20 स्टेट में 28 अलग से ग्रोथ सेंटर बना दिए, दैट मीन्स द माइग्रेशन विल बी चेक्ड। माइग्रेशन को चेक करा जाएगा। ग्रोथ सेंटर बन गए, हमने रैपिड मेट्रो चला दी, मेरठ से आओ जॉब करो दिल्ली में और चले जाओ, यहाँ पे सेटल्ड मत हो। डेंसिटी पॉपुलेशन का जो बर्डन है वो कम करो, स्मार्ट सिटीज़ पे से कम करो। हमारी हर स्मार्ट सिटीज़ ओवर पॉपुलेटेड हो रही है। ओवर पॉपुलेटेड मीन दैट इन द
smaller area we need to investment large on the infrastructure. That means जो पैसा किसी अदर रीजनल डेवलपमेंट में लगना चाहिए था वो सारा का सारा स्मार्ट सिटीज में आके लग जा रहा है। तो इकोनॉमिकली पैरिटी के साथ रीजनल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। आगे की बात करें तो इसलिए define the concept of the growth center and evaluate its relevance in the regional planning in India। growth center को किससे कनेक्ट करा जा रहा है? रीजनल प्लानिंग से। और हमारा पहला क्वेश्चन ही क्या था? द वेरियस रीजन इन इंडिया। मैं पहले क्वेश्चन से आपको सारे क्वेश्चन रिलेट करके चल रहा हूँ। वेरियस रीजन इकोनॉमिक कॉजेस को लेकर बात कही थी, सारी की सारी बात इकोनॉमिक्स पे आके टिक जाती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स पैसा नहीं होता, इकोनॉमिक्स होता है रिसोर्सेज प्रायोरिटी बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई, राइट। तो इकोनॉमिक्स पैसा नहीं है, पैसा इज वन ऑफ द फॉर्म और द कॉन्स्टिट्यूएंट और द ऑर्गन दैट वी नीड टू स्टडी इन द इकोनॉमिक्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इकोलॉजिकल बैलेंस? फ्लोरा एंड फौना, हमने लास्ट हेडिंग में देखा अपना सिलेबस की। फ्लोरा एंड फौना दैट मीन्स द स्टडी ऑफ द ईवीएस की स्टडी की डिमांड है यहाँ पर। फ्लोरा एंड फौना, why is this balance is necessary? The crux of the question is why this balance is necessary, and when it is being asked why this balance is necessary, that means checking or understanding in respect of the EVS and how we can make the EVS to the sustainable EVS, environmental studies को हम कैसे sustainable कर सकते हैं। What is being done in India today to maintain this balance? और भारत में एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए, ये हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को बैलेंस आउट करने के लिए स्टेट की ओर से क्या क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट, दैट मीन द बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द रिस्पेक्टिव स्टेट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। भारत में प्रोविंस यूज नहीं करा जाता है बिकॉज वी आर द फेडरल इन द नेचर, दैट्स व्हाई वी यूज द टर्म एज ए स्टेट, ठीक है। इंडिपेंडेंस से पहले हमारे क्या थी? प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, क्योंकि हमारे पास यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर था। अभी हमारे पास क्या है? फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर्स है, जहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर का कौन नोशन अलग है, हमारे पास डिवीजन ऑफ पावर है, क्योंकि हम फ्रीडम मूवमेंट से निकल के आए हैं, लिबरेशन मूवमेंट से निकल के नहीं आए। देयर इज ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन द फ्रीडम एंड द लिबरेशन और द लिबर्टी, ठीक है। So why this balance is necessary? What is being done in India today to maintain this balance? So this is the nature of the question in respect of the geography। और अब हम एक बार फिर से सिलेबस देख लेते हैं। और सिलेबस क्या कह रहा है? तो सिलेबस ये कह रहा है, नाउ हमने 12 क्वेश्चन को स्टडी करा और सिलेबस को स्टडी करा, कोई रेलिवेंसी मिल रही है क्या? कोई इंटरकनेक्टेडनेस मिल रही है? कोई सिलेबस से डायरेक्शन से मिल रही है ज्योग्राफी के क्वेश्चन की? नहीं मिल पाएगी। जीएस के सिलेबस से नहीं मिलेगी। तो सर मिलेगी कहाँ? अरे जय के लिए तो हम आए हैं। देखिए पीवाईज किस हो गए, आगे आइए। अब स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ज्योग्राफी, हम ज्योग्राफी की डेवलपमेंटल स्टेजेस देख ले रहे हैं। पीवाईज किसको ध्यान में रखना है? ज्योग्राफी के सिलेबस को ध्यान में रखना है। 2 स्टेज हमारे पास हो गई हैं, अब हम तीसरी स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं। और हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे ज्योग्राफी के डेवलपमेंटल स्टेजेस को देखेंगे। और जैसे हम ज्योग्राफी के डेवलपमेंट स्टेज को देखते हैं तो हमारे पास एक आती है इनिशियल स्टेज। यहाँ पर ज्योग्राफी अपने फिजिकल फॉर्म में है, ठीक है। इनिशियल स्टेज कब से कब तक? अप टू 350 AD से, इनिशिएटिंग स्टार्टिंग से 350 AD तक ज्योग्राफी अपने पास कैसी है? फिजिकल फॉर्म में है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि प्रेजेंटली देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडिल ईस्ट एंड द कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन इजराइल एंड द हमास। इजराइल और हमास में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किस बात के लिए हो रहा है? तो वो इस बात के लिए हो रहा है कि डोमिनेंस किसकी चलेगी। तो अब हम उस कॉन्फ्लिक्ट की अगर हिस्ट्री में जाते हैं तो आपको उसकी हिस्ट्री के लिए आपको स्टडी करने पड़ेगा 4,500 ईयर की स्टडी। और अगर आपको 4,500 ईयर की स्टडी हिस्ट्री को स्टडी करना पड़ेगा तो आप पाएंगे अराउंड दिस 350 AD रोमन एम्पायर under the leadership of the king Constantine adopted the Christianity as a state religion। और जैसे क्रिश्चियनिटी को स्टेट रिलीजन अडॉप्ट करते हैं तो क्रिश्चियनिटी में एक वर्ड है हीथन। हीथन मीन्स द पर्सन्स और द इंडिविजुअल हु आर नॉट क्रिश्चियन मीन्स हीथन। दैट मीन्स भारत में इनको क्या बुलाता है? अनटचेबल्स हैं वो, उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर उनकी सोल को प्योर करना है, उनकी सोल क्या है? करप्ट है, क्योंकि वो क्रिश्चियंस नहीं है। तो उनकी सोल को हमें प्योर करना पड़ेगा। उस प्योर करने के लिए हमको उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना पड़ा है तो क्रिश्चियनिटी का भौकाल भी तो खड़ा करना है।
यूपी में बोला जाता है भोकाल। तो क्रिश्चियनिटी का भोकाल खड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिलीजन इज सुप्रीम एंड एवरी स्ट्रीम इज कमिंग फ्रॉम द रिलीजन and the religion is supreme. The which religion is supreme? The Christianity is supreme. So the every thought, every concept, every thesis is coming from the religion, or that's why this stage is called as the dark stage, जहाँ पे ज्योग्राफी की सारी इन्वेस्टिगेशन और थीसिस को रिलीजन से कनेक्ट करके रिलीजन को सुपरसीड करा गया है, रिलीजन को हाई प्रायोरिटी और द हाई सीट दी गई, और उसके बाद ज्योग्राफी को रिलीजन बेस्ड करके सारी इन्वेस्टिगेशंस को और उसकी रिसर्च को या किसी भी डिसिप्लिन की सारी इन्वेस्टिगेशन रिसर्च थीसिस को उससे कनेक्ट करके रिलीजन के साथ जोड़ा गया। इसलिए अब यहाँ पर कोई नया डेवलपमेंट ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन में नहीं हो रहा है। लेकिन हर रात के बाद सवेरा तो है, सूर्य अर्थात प्रकाश, प्रकाश अर्थात ऊर्जा, और जब ऊर्जा आएगी तो एक नई स्टेज डेवलप होगी, रिनेसेंस की स्टेज 1300 AD से 1700 AD। यहाँ पे फिर से ज्योग्राफी की रिसर्च एंड थीसिस आई और ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट अपने आप को फिर से डेवलप करता है। और फोर्थ स्टेज में ज्योग्राफी इंटेलेक्चुअल और नॉलेज के लेवल पे डेवलप होता है, और यहीं पर ज्योग्राफी अपने आप को ह्यूमैनिटी से जोड़ती है। यहीं पर ज्योग्राफी अपने आप को ह्यूमैनिटी से जोड़ती है। दैट मीन्स फ्रॉम द फिजिकल फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट, नाउ द ज्योग्राफी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फिजिकल फॉर्म डोमिनेटेड बाय द ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। भूगोल का उपयोग मानव कल्याण के लिए, भूगोल का उपयोग केवल पृथ्वी वगैरह को जानने के लिए नहीं, इनको जान के इनके कल्याण के लिए, इसलिए इसको बोलोगे इंटेलेक्चुअल स्टेज। वी हैव द इंफॉर्मेशन, वी हैव द नॉलेज एंड वी हैव द विजडम। इंटेलेक्चुअल मीन्स विजडम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड द विजडम? सूचना, ज्ञान और बुद्धि में क्या अंतर है? तो सूचना एक इंफॉर्मेशन मेरे पास है, उस इंफॉर्मेशन को यूज करके कुछ लिखना, समझना, पढ़ना नॉलेज कहलाता है। और उस नॉलेज के बेस पे जब हम कुछ क्रिएट कर देते हैं, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो कि मेरा है, जहाँ पे आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रखते हैं, तो उसको बोलते हैं विजडम, प्रज्ञा, बुद्धि, विवेक, इंटेलेक्चुअल। तो यहाँ पे ज्योग्राफी क्या करती है? जानने से ज़्यादा व्हाट से वाई की ओर बढ़ती है और वाई से सॉल्यूशन की ओर बढ़ती है। और सॉल्यूशन किसके पर्सपेक्टिव में? एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव में। सॉल्यूशन किसके पर्सपेक्टिव में? ह्यूमन सिविलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में। सॉल्यूशन किसके पर्सपेक्टिव में? सस्टेनेबिलिटी के पर्सपेक्टिव में, जहाँ पे हम इंक्लूसिव ग्रोथ और फूड चेन की ओर हम लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो ज्योग्राफी की ये डेवलपमेंटल स्टेज है, जहाँ पे लास्ट में ज्योग्राफी आके किससे जुड़ जाती है? ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे ही ज्योग्राफी ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में कन्वर्ट होती है, उसके ओवरलैपिंग एरियाज आ जाते हैं। कौन कौन से ओवरलैपिंग एरियाज हैं ज्योग्राफी के? आर्ट है। ओवरलैपिंग एरियाज कौन कौन से ज्योग्राफी के? आर्ट, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, हिस्ट्री। मेरा तो कुछ है नहीं। NCERT फंडामेंटल फिजिक्स, फंडामेंटल ज्योग्राफी से मैंने उठाया क्लास 11th के NCERT से, उसमें दे रखा है पूरा का पूरा। तो NCERT कह रही है कि ज्योग्राफी यहाँ पे ओवरलैप कर रही है। हम भी तो ये कह रहे थे कि ज्योग्राफी ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में जब कन्वर्ट हो रही है तो अदर डिसिप्लिन्स के साथ वो ओवरलैप करेगी, तभी तो उसकी इंटेलेक्चुअल नॉलेज बेस्ड स्टेज निकली है। तो ज्योग्राफी इनके साथ ओवरलैप करती है। ओवरलैप ऑफ द ज्योग्राफी विद द अदर सब्जेक्ट, द सोर्स ऑफ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड द इंटीग्रेशन। फ्लेक्सिबिलिटी, ज्योग्राफी इज ए फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट। जैसे हिंदी एक लचीली भाषा है ना, सारी भाषाओं का उसमें समावेश होता है, ऐसे ज्योग्राफी फ्लेक्सिबल है और वो समावेश करते हुए अपने आप को जोड़ती है। हिंदी अपने अंदर रिक्शा शब्द का समावेश करती है और फिर रिक्शा से अपने आप को जोड़ देती है, जो कि एक जैपनीज भाषा का शब्द है। ठीक है, ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगर उसके ये सारे के सारे डिसिप्लिन है जिनके साथ ज्योग्राफी ओवरलैप करती है, तो हमने क्या क्या देखा? हमने PY स्किल्स देखे, हमने ज्योग्राफी का सिलेबस देखा। ठीक है, ये सिलेबस है ज्योग्राफी का। फिर हमने PY स्किल्स देखे, फिर हमने ज्योग्राफी की डेवलपमेंटल स्टेज देखी, और फिर हमने देखा कि ज्योग्राफी कैसे ह्यूमैनिटी से आके कन्वर्ट होती है। और जब ह्यूमैनिटी से कन्वर्ट होती है तो हमने उसके ओवरलैपिंग एरियाज देखे, और जैसे हम उसके ओवरलैपिंग एरियाज की स्टडी करते हैं कि भाई इन सब के साथ साथ ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन ओवरलैप कर रही है और इंटीग्रेट कर रही है, तब हम UPSC के करंट क्वेश्चन अप्रोच पर आते हैं। और UPSC अपने करंट क्वेश्चन किस किस ब्लेंड के साथ पूछ रही है, हम इस पर बात करेंगे। देखिए, तो अब प्रेजेंट में UPSC क्या कर रही है, जो उसके करंट क्वेश्चन अप्रोच है वो ब्लेंड है।
और सी करंट क्वेश्चन अप्रोच किसका ब्लेंड है? ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट। अगर हम तीनों क्वेश्चन की स्लाइड्स को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये मेजर ब्लेंड्स हैं। अगर इन सारे क्वेश्चन की हम स्लाइड्स को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा सारे के सारे मेजर ब्लेंड्स हैं। ठीक है, राइट? सारे के सारे क्वेश्चंस को कौन कौन से ब्लेंड्स हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ वो ब्लेंड करेगी, लेकिन जो मेजॉरिटी ब्लेंड्स होंगे वो होंगे इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट। इनके साथ वो लगातार ब्लेंड करते हुए आगे की ओर बढ़ेगी। टारगेट क्या है यूपीएससी का? एकेडमिक्स पर्सपेक्टिव से तो क्वेश्चन पूछा नहीं आ रहा ना। अगर एकेडमिक्स क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन नहीं पूछा, देन व्हाट इज द टारगेट ऑफ द यूपीएससी इन रिस्पेक्ट ऑफ द आस्किंग द क्वेश्चन? सो द टारगेट ऑफ द यूपीएससी दैट यू मस्ट बी इन द माइंडसेट ऑफ द reform oriented sustainable development. If you are the future civil servant, that your mindset should always be directed towards what? So towards what? The reforms oriented sustainable development. This is the aspiration or the aspect of the UPSC from the future civil servant. And if this is the expectation of the UPSC from the future civil servant, that means you need to prepare yourself in this context where the geography is a multidisciplinary subject overlapping with the other disciplines, and the question will be of this blend of the nature, geography, economics and the environment. Geography, economics and the environment. और जो इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट को ब्लेंड करेगा वो ब्लेंड करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव में करेगा। वो पूरा का पूरा ब्लेंड करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव में करेगा। दैट मीन्स द ज्योग्राफी विल बी द बैकबोन and the environment and the economics blends is coming from the direction of taking its direction from the current affairs, and that's how a question has been prepared and the question shall be prepared in the UPSC civil service examinations. करेक्ट है? अगर हम इसी बात को ले लें तो बस एक क्वेश्चन, किसी भी के क्वेश्चन को आप दोबारा देख लीजिए। क्या बोल रहे हैं? स्मार्ट सिटीज कैन नॉट बी सस्टेन विदाउट द स्मार्ट विलेजेस। पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स है, अर्बन रूरल का इंटीग्रेशन करा गया है, और यहीं पर अर्बन रूरल का इंटीग्रेशन करते समय आपको एनवायरनमेंट का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इंटीग्रेशन एनवायरमेंटल सस्टेनेबल नहीं है तो क्या होगा? तो हीट आइलैंड क्रिएट होंगे, हीट आइलैंड क्रिएट होंगे। उन हीट आइलैंड को क्रिएट करने से रोकना है अर्बन रूरल का इंटीग्रेशन करते हुए, इसलिए एनवायरनमेंट का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी ब्लेंड के साथ यूपीएससी ज्योग्राफी के अपने क्वेश्चन लगातार आस्क कर रही है, पूछ रही है। यहाँ तक बात क्लियर है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ तक बात बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार देखिए, 2 बार देखिए, लेकिन देखना पड़ेगा तो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बात करने से ही समाधान निकलेगा, दैट द सोल्यूशन निकलेगा। और जैसे ही सोल्यूशन निकलता है कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगा, और अगर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है तो कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिकली विल बी देयर। तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन होगा, और आपको कोऑर्डिनेट किससे करना है? आपको कोऑर्डिनेट यूपीएससी के माइंड सेट से करना है। So with what we need to coordinate? So we need to coordinate with this subconscious mindset of the UPSC. क्वेश्चन पूछने के पीछे माइंडसेट क्या काम कर रहा है? तो माइंडसेट ये काम कर रहा है that the civil servant must always be ready with the reform oriented sustainable development in their authoritative approach. अथॉरिटी होगी ना आपके पास, पावर तो होगी नहीं। पावर अथॉरिटी में डिफरेंस है ना। तो अगर सिविल सर्वेंट अथॉरिटी के साथ काम करेगा तो करप्ट नहीं होगा, सिविल सर्वेंट पावर के साथ काम करेगा तो करप्ट हो जाएगा। अथॉरिटीज ब्लेंड करनी है उसके अंदर, और अगर ये अथॉरिटीज ब्लेंड हो गई या क्वेश्चन तो नीचे क्लियर हो गया, तब हम आगे की ओर बात करेंगे। हम आगे की ओर बात इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास सिलेबस की क्लैरिटी नहीं थी। हम आगे की बात इसलिए करेंगे क्योंकि सिलेबस की क्लैरिटी हमारे पास नहीं थी। पूरा का पूरा सिलेबस है, राइट है? ये पूरा का पूरा सिलेबस है। क्या समझे सिलेबस से? हमने क्वेश्चन ऑफ नेचर देख लिए हैं सारे के सारे। अगर हमने क्वेश्चन ऑफ नेचर देख लिए सारे के सारे, तो सिलेबस से फिर क्या समझे भाई मेरे, भाई और बहनों? तो इस सिलेबस से क्या समझा जाए? तो इस सिलेबस से ये समझा जाएगा कि सर कि सर कुछ समझ में तो आ नहीं रहा, एक्चुअली में बताया कुछ और जा रहा, हो कुछ और रहा, करना वास्तव में कुछ और ही है। तो करना क्या है? सिलेबस ढूंढना पड़ेगा ना। विदाउट सिलेबस तो कुछ होगा नहीं। तो सिलेबस हम ढूंढेंगे कहाँ? तो सिलेबस हम ढूंढेंगे ऑप्शनल में, ज्योग्राफी ऑप्शनल में। किसी का बेस्ट सिलेबस आपको चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, तो एक बार उसके ऑप्शनल को स्टडी करिए।
उसके ऑप्शनल में आपको कोर सिलेबस मिलेगा और फिर पेरिफेरल सिलेबस मिलेगा। और अगर कोर और पेरिफेरल के सिलेबस में आपने करंट अफेयर्स का ब्लेंड तड़का डाल दिया तो सब्जी बहुत ही अच्छी बनेगी, और बहुत अच्छी ऐसी बनेगी कि लोग उंगली चाटते रह जाएंगे। ठीक है, तो ब्लेंड क्या है? तो मैंने इस ज्योग्राफी, जीएस और ऑप्शनल को 10 सेक्शंस में डिवाइड करा है सिलेबस के पर्सपेक्टिव से, जहाँ पे एक सेक्शन मेरा अपना है, इसको मैंने बोला है जनरल ज्योग्राफी। इसको हमने क्या बोला है? जनरल ज्योग्राफी। ये वाला लेते हैं, ये वाला लेते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या बोला है? जनरल ज्योग्राफी। यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम ज्योग्राफी से अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, ज्योग्राफी का नेचर समझेंगे, है? ज्योग्राफी से हाय हेलो करेंगे, हैंडशेक करेंगे, और जब उसको हमारा हैंडशेक पसंद आ जाएगा, मतलब हम उसको समझ लेंगे, तो उसी इंटेंसिटी के साथ उससे हैंडशेक करेंगे ना। जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं बाहर जाके हैंडशेक करता हूँ तो मेरे पीछे किसका फोर्स रहता है? 1.4 बिलियन पॉपुलेशन का। तो उसी हैंडशेक के साथ हम ज्योग्राफी के साथ भी हैंडशेक करेंगे, और जब हम ज्योग्राफी के साथ हैंडशेक करेंगे तो ज्योग्राफी को हमारा हैंडशेक पसंद आएगा, और जब हैंडशेक पसंद आएगा तो ज्योग्राफी और हम एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। यानी कि अब हम यहाँ से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना स्टार्ट करेंगे। तो जब ज्योग्राफी इंट्रोड्यूस हो जाएगी तो वो कहेगी पहले मेरा फिजिकल मैप समझ लो, पहले मेरा फिजिकल डिज़ाइन समझ लो, पहले मेरी फिजिकल शेप समझ लो। तो हम क्या करेंगे? तो हम ज्योग्राफी की मैपिंग करेंगे, एटलस बोलते हैं इसको साधारण भाषा में। ठीक है, हम ज्योग्राफी की क्या करेंगे? एटलस करेंगे। और कैसी एटलस करेंगे? थॉरो एटलस करेंगे। मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, बढ़िया तरीके वाला ये लेते हैं। ठीक है, एटलस कैसे करेंगे? थॉरो एटलस करेंगे, इन डिटेल एटलस करेंगे, ताकि हम ज्योग्राफी के पूरे माइंड मैप को अपने माइंड मैप के साथ मैच कर लें। ठीक है, ज्योग्राफी का पूरा डिज़ाइन, शेप हम उसको उसके साथ क्या मैच कर लें? अपने आप को मैच कर लें। और जैसे ही हम ज्योग्राफी की माइंड मैपिंग कर लेते हैं, फॉर सपोज एग्जाम्पल हम इजराइल और हमास कॉन्फ्लिक्ट पे चल लेते हो, तो इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट का बेस क्या है? ज्योग्राफी है। और दूसरा बेस क्या है? रिलीजन है। धर्म किस बात के लिए लड़ा जा रहा है? उस ज़मीन को कैप्चर करने के लिए लड़ा जा रहा है, जिसका उपदेश धर्म में दिया गया है, जिस पे सरमेंट उपदेश किस पे दिए गए हैं? धर्म के अनुसार दिए गए हैं। किसके लिए दिए गए हैं? लैंड के लिए दिए गए हैं। क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्ट किस बात का चल रहा है? वहाँ पे कॉन्सेप्ट चल रहा है प्रॉमिस लैंड का। वहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका चल रहा है? प्रॉमिस लैंड का। प्रॉमिस लैंड क्या है? प्रॉमिस लैंड इजराइल लेकर रहेगा, मानो या न मानो। कोई कॉन्फ्लिक्ट ये बंद होने वाला नहीं, बंद होने वाला। इजराइल की स्टेट पॉलिसी वो कॉन्फ्लिक्ट लेके चलेगा। अब बात को समझिए कैसे। इजराइल का धर्म यहूदी, वहाँ के लोग हैं यहूदी, यहूदियों के धर्म के ईश्वर का नाम है यहूदा। और यहूदा ने क्या करा? यहूदा ने उनके पैगंबर मैसेंजर ऑफ गॉड को क्या प्रॉमिस करा? प्रॉमिस लैंड का। किस बात पे प्रॉमिस करा? कि देखो मेरे 10 कमांड हैं, तुम इनका अनुसरण करो, इनका पालन करो, इनको फॉलो करो। और इफ़ यू आर फॉलोइंग देम रिलीजियसली, अगर आप धर्म के अनुसार उनका पालन करते हो, देन आई प्रॉमिस यू टू गिव यू अ प्रॉमिस लैंड। और उस प्रॉमिस लैंड के अकॉर्डिंग इजराइल को जो प्रॉमिस लैंड लेनी है, उसमें उसका लेबनान भी आएगा, सीरिया भी आएगा, वेस्टर्न जॉर्डन आ रहा है, उसका साउथ के एरिया भी आएगा। इसलिए इजराइल अपने ईश्वर का कहना मानेगा, और इजराइल को अपनी प्रॉमिस लैंड लेनी है। आज नहीं लेगा, कल लेगा, कल नहीं लेगा, परसों लेगा। जिस दिन वो अपनी प्रॉमिस लैंड ले लेगा, यानी कि फिलिस्तीन और आसपास के पूरे देशों को वहाँ से हटा देगा, उस दिन ही वो एरिया शांत होगा। उससे पहले वो एरिया शांत होने वाला नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए। जो आईआर के स्टूडेंट है वो समझ रहे होंगे पर्टिकुलरली, और नहीं समझेंगे तो आप समझ लीजिए। इजराइल की स्टेट पॉलिसी रिलीजन बेस्ड है, और रिलीजन बेस्ड में उसका रिलीजन में उसके ईश्वर यहूदा ने कहा है, क्या कहा है? आई विल गिव यू अ प्रॉमिस लैंड। इसलिए प्रॉमिस लैंड की बात करेंगे तो कोई भी यहूदी वो सेंटिमेंटल हो जाएगा, और वो उसको वो प्रॉमिस लैंड लेनी है। उस प्रॉमिस लैंड के अकॉर्डिंग उसे एटलस में देखेंगे तो उसका माइंड में पूरा क्लियर हो जाएगा। नॉर्थ में सीरिया और लेबनान है, वेस्ट में वेस्ट जॉर्डन का एरिया पड़ता है, और साउथ में फिर सिनाई पेनिनसुला उससे नियर बाय का एरिया पड़ जाता है। ये प्रॉमिस लैंड वो लेकर रहेगा, गाजा पट्टी वो लेकर रहेगा, पूरे मेडिटेरियन कोस्ट को वो अपने अंदर एजिमुलेट कर लेगा। ये हम कब समझ पाएंगे? जब हम मैपिंग को पूरी तरह कम्प्लीटली थॉरोली देख लेंगे, क्योंकि हम उसके आसपास के सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स की स्टडी हम लोग कर लेंगे। जनरल ज्योग्राफी, मैपिंग, फिर आता है आपका फिजिकल ज्योग्राफी। और फिजिकल ज्योग्राफी में कितने सेक्शन? जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी। चौथा आता है बायो ज्योग्राफी, और पांचवा आता है एनवायरमेंट ज्योग्राफी। अब पहले के 5 सेक्शन का सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस क्या कह रहा है भाई जनरल ज्योग्राफी का? तो जनरल ज्योग्राफी का सिलेबस ये कह रहा है सोलर सिस्टम,
जनरल ज्योग्राफी का सिलेबस क्या कहता है? सोलर सिस्टम। इस सोलर सिस्टम में ही 7 से 8 और मैक्सिमम 10 लेक्चर्स यहाँ पर 99 नोट्स पर होने वाले हैं। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग स्टार फॉर्मेशन जैसे कि प्लैनेटरी फॉर्मेशन, और हम जो फैक्चुअल अपडेट दे रखी है उनसे अलग सोलर सिस्टम की बात करेंगे और फिर हम उसको ज्योग्राफी से रिलेट करेंगे ताकि क्वेश्चन फ्रेम कैसे हो जाए, और उसके बाद हम उसके पीवाईस क्यूज देखेंगे। सोलर सिस्टम फिर क्या पढ़ेंगे हम? इमेजिनरी लाइन एक्सिस, इक्वेटर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, रेलिवेंसी इन द स्टडी। क्योंकि एक बार इमेजिनरी लाइन क्लियर होगी तो हम हीट जोन को क्लियर करेंगे, और जैसे ही हीट जोन क्लियर होते हैं, अगर टेम्परेचर हाई है तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो वेजिटेशन क्या हो जाएगी? ड्राई डाउन हो जाएगी। वेजिटेशन ड्राई डाउन हो गई तो फूड चेन कोलैप्स हो जाएगी, और अगर फूड चेन कोलैप्स होगा तो सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। टेम्परेचर माइनस हो गया तो भी सिविलाइजेशन अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हमको एक मेंटेन सस्टेनेबल बैलेंसेबल टेम्परेचर चाहिए, उसके लिए हमें अर्थ के हीट जोन को स्टडी करना पड़ेगा। अर्थ के हीट जोन को स्टडी करने के लिए आपको इमेजिनरी लाइन को स्टडी करना ही पड़ेगा, और अगर इमेजिनरी लाइन की आपके पास रेलिवेंट स्टडी मटेरियल या रेलिवेंट स्टडी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं इमेजिनरी लाइन, भाई हाँ भाई एक्सिस होती है, हाँ जी सर होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, हाँ सर होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, हाँ सर होता है। इनके लैटिट्यूडनल पोजीशन कितनी है सर? इतने इतने डिग्री है। दैट्स इट, हो गया काम। बनी क्यों है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? बनी क्यों है? ड्रॉ कैसे करेगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे ड्रॉ करेगी? कौन कौन से एंगल यहाँ पे काम कर रहे हैं? एंगल की रेलिवेंसीज क्या है और उनके कारण से किस प्रकार से सीजन्स आते हैं? अगर इन इमेजिनरी लाइन को हमने स्टडी नहीं करा तो ज्योग्राफी से इंट्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा। ज्योग्राफी की जवाब भैया तुम हमारे योग्य ना हो, हम क्या तुम्हारे योग्य होते? तुम हमारे योग्य ना हो। आगे की बात करो। मोशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन, द रेवोल्यूशन पढ़ेंगे। सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स को स्टडी करेंगे किसमें? जनरल ज्योग्राफी में। फिर हमारे पास क्या था? मैपिंग थी। मैपिंग का कोई सिलेबस नहीं है, सिलेबस जो पूरा का पूरा एटलस में है। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस को स्टडी हम लोग करेंगे। नेक्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में 3 सेक्शन थे ना हमारे पास, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशिनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी। ये पूरा सेक्शन 100% रहेगा जीएस के सिलेबस में। ये पूरा सेक्शन 100% रहेगा जीएस के सिलेबस में, और फिजिकल ज्योग्राफी पूरी की पूरी 100% रहेगी जीएस के सिलेबस में। कैसे? आइए मैं एक एक टॉपिक का नाम बोलूंगा और आप बताते चले जाना कि सर ये टॉपिक ऑप्शनल के लिए है, जीएस के लिए नहीं है, आप झूठ बोल रहे, यू आर टेलिंग अ लाई टू अस। कैसे? ओरिजिन, एज एंड द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। इंटरनल स्ट्रक्चर, यस। अर्थ मूवमेंट, यस। ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, यस। थ्योरी ऑफ द आइसोस्टेसी, यस। अर्थ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, द रॉक, रॉक पढ़ने पड़ेंगे, यस। वॉल्केनो, यस। अर्थक्वेक, यस। माउंटेन, यस। प्लेटू, यस। प्लेन, यस। लेक, यस। वेदरिंग, यस। साइकिल ऑफ इरोजन, यस। ड्रेनेज सिस्टम, यस। वर्क ऑफ द वाटर, रिवर, यस। ग्राउंड वाटर, यस। वर्क ऑफ द सी, यस। वर्क ऑफ द विंड, यस। वर्क ऑफ द ग्लेशियर, यस। पेरिग्लेशियर प्रोसेस इन द लैंडफॉर्म, यस यस यस। एक टॉपिक बता दीजिए जीएस में नहीं पढ़ना है आपको, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। दैट मीन्स जियोमॉर्फोलॉजी इज 100% इंक्लूडेड इन द जीएस सिलेबस। आगे की ओर बात करिए। हाइड्रोस्फीयर, रीफ ऑफ द ओशन बेसिन, यस। टेम्परेचर, डेंसिटी, यस। सैलिनिटी, यस। डिपॉजिट्स, यस। टाइड, यस। वेव्स, करंट, यस। कोरल एंड द कोरल ब्लीचिंग, यस। मैराइन रिसोर्सेज, यस। प्रधानमंत्री अभी तो वो क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बाद मालदीव और लक्षद्वीप को लेकर जो स्टेटमेंट्स चले हैं पॉजिटिव नेगेटिव। कोरल आइसलैंड ही तो है लक्षद्वीप। सेडिमेंटेशन के थ्रू क्या हुआ? समुद्र की सतह से ऊपर आ गया और आइसलैंड में डेवलप हो गया। फाउंडेशन क्या है? कोरल। फिर उसके पास पेरिफेरिस क्या है? सेडिमेंटेशन, और सेडिमेंटेशन से क्या बन गया? एक आइसलैंड बन गया। मैराइन रिसोर्सेज, यस। मैराइन रिसोर्सेज, यस। हाँ सर पढ़ने, पूरी इकोनॉमी इन पर काम करती है। नेक्स्ट, क्योंकि पूरी इकोनॉमी से काम करेगी तो अगर वो रीजनल डेवलपमेंट है, जो हमने पहली स्लाइड का पहला क्वेश्चन देखा है, तो अगर रीजनल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो रीजनल डेवलपमेंट कोस्टल में भी तो हो सकता है, और अगर कोस्टल में हो सकता है तो क्या मैराइन रिसोर्सेज की वहाँ पे यूटिलाइजेशन नहीं होगी? तो अगर मैराइन रिसोर्स की इकोनॉमिक चेन को करेक्ट कर देते हैं तो रीजनल डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होगा। दैट मीन्स इट इज़ वेरी मच द सिलेबस ऑफ द जीएस ज्योग्राफी, क्योंकि सारे के सारे पीवाई क्यूज मैं जीएस ज्योग्राफी के लेके आया हूँ, एक भी पीवाई क्यूज ऑप्शनल ज्योग्राफी का नहीं था। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, कंपोजिशन द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यस। इंसुलेशन, द हीट बजट, यस। टेम्परेचर, यस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यस। जनरल सर्कुलेशन, यस। लोकल एंड द सीजनल विंड्स, यस।
Atmospheric stability, instability, yes. Atmospheric humidity, precipitation, yes. Air masses, yes. Frontogenesis, yes. Classification, climate, yes. Type of the climate and the climatic region, yes, yes, yes. Very much yes. That means what? It means that the sectional division, under this sectional division, general geography 100%, mapping 100%, physical geography with the geomorphology, climatology, oceanography is 100%. Yes. Now come to the biogeography, जैव भूगोल. क्या कहता है जैव भूगोल भाई? जे कहते हो जैव भूगोल. क्या कहता है? जेनेसिस ऑफ द सॉइल, यस. Classification distribution of the soil, yes. Soil horizon, yes. Soil erosion, yes. Factor influencing the world distribution of the plant and the animal, yes. किसी ने कहा सर ये तो ऑप्शनल का सिलेबस है. अरे मैंने कहा भाई ये तो जीएस का है, जीएस में भी जनरल ज्योग्राफी का है. जनरल ज्योग्राफी मीन्स हैंडशेक टू दी ज्योग्राफी. कैसे? फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन द प्लांट एंड द एनिमल हमने करा था हीट जोन ऑफ द अर्थ. जनरल ज्योग्राफी में अगर हीट जोन ऊपर नीचे हो गए तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट और द एनिमल भी तो अफेक्टेड होगा. यानी कि जो हीट जोन है उसका क्वेश्चन तो मैं पूरा का पूरा यहीं से मिल जाएगा आंसर. जनरल ज्योग्राफी जो कहते थे ये सर ऑप्शनल का सिलेबस है, अरे भाई ये जीएस ज्योग्राफी में बिल्कुल हैंडशेक का क्वेश्चन है. हैंडशेक विद द ज्योग्राफी, जस्ट टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ टू द ज्योग्राफी. आगे The problems of the deforestation, the conservation measures, the social forestry, very much important topic. अगर सोसाइटी एंगेज हो जाएगी तो गवर्नमेंट जो भी इनिशिएटिव लेगी वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, और अगर सोसाइटी एंगेज नहीं होगी तो सारे पेड़ कटते रहेंगे और गवर्नमेंट कितने भी इनिशिएटिव ले ली, दैट इज गोइंग टू बी दी फेल्ड इन रिजल्ट. नेगेटिव इम्प्लीकेशन ऑल्सो अलॉन्ग विद देयर. एग्रोफॉरेस्ट्री, यस. वाइल्ड लाइफ, यस. मेजर जीन्स एट द सेंटर, यस. जीन टेक्नोलॉजी को हम जब आगे लेके चलेंगे तो अगर करंट अफेयर से क्वेश्चन आ सकता है तो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हमारे पास होनी चाहिए. तो मेजर जीन्स एंड द जीन सेंटर इन इंडिया, यस. वेरी मच यस. दैट मीन्स the biogeography is also included with the 100% syllabus. Now come to the environment geography. इनिशियली बोल दे रहा हूँ स्टार्टिंग में 100% सिलेबस है, चाहे कुछ भी हो. और सिलेबस क्या है? द प्रिंसिपल्स ऑफ द इकोलॉजी. हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था इकोलॉजिकल बैलेंस. प्रिंसिपल्स ऑफ द इकोलॉजी, ह्यूमन इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, इन्फ्लुएंस ऑफ द मैन ऑन द इकोलॉजी, ग्लोबल रीजनल इकोलॉजिकल चेंजेस इन द इम्बैलेंसेस, इकोसिस्टम द मैनेजमेंट एंड द कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन मैनेजमेंट एंड द कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एजुकेशन एंड द लेजिस्लेशन. अगर सोशल फॉरेस्ट्री में सोशल पार्टिसिपेशन हो सकता है तो एनवायरनमेंट एजुकेशन में नहीं हो सकता. अगर सोसाइटी अपने आप से एनवायरनमेंट एजुकेशन करे, जैसे कि जब शारदीय नवरात्रे आते हैं, जो सितंबर नवरात्रे आते हैं तो क्या हो जाते हैं? जॉब हो जाते हैं उपले पर. अच्छा, हमारी माँ कैसे करती है? वो जॉब होती थी, एक मिट्टी लेती थी, एक हंडिया में, मिट्टी की हंडिया में मिट्टी, उसके अंदर जॉब, फिर उसके लगाई प्लेट, और प्लेट को भी आटे से बंद कर दिया. तो मैंने माँ से पूछा कि माँ इसको तो फिर एयर लगेगी नहीं तो सूख जाएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, ये चेक इसलिए करा जा रहा है कि इस बार का मौसम कैसा है और फसल कैसी होगी. एनवायरनमेंट एजुकेशन कल्चर में है भाई. तो अगर कल्चर डेवलपमेंट की बात हो जाएगी तो एनवायरनमेंट एजुकेशन की तो ऑलरेडी बात हो जाएगी. पीपल के पेड़ की पूजा क्यों करी जाएगी? बेस्ट लेवल की ऑक्सीजन देता है. तुलसी को क्यों पूजा जाएगा? बेस्ट लेवल की ऑक्सीजन देती है. 5 पेड़, तुलसी, पीपल, अशोक, 2 पेड़ का नाम भूल गया मैं, ये बेस्ट लेवल के ऑक्सीजन देते हैं. एनवायरनमेंट एजुकेशन एंड द लेजिस्लेशन, कोई ब्लर पॉइंट है तो उसको एजुकेशन के थ्रू हम ओवरलैप कर सकते हैं. हमने कहा था ना वेगरीज ऑफ द मानसून, तो वेगरीज ऑफ एजुकेशन को हम लेजिस्लेशन के थ्रू कवर अप कर सकते हैं. तो एनवायरनमेंट इज ऑल्सो इंक्लूडेड द 100%. देन द ह्यूमन ज्योग्राफी ऑल टुगेदर फॉर द जीएस ऑप्शनल पर्सपेक्टिव, वो ज्योग्राफी ऑप्शनल. Economic geography, first 3 topic important for the GS. The world economic development measure the problem, the world resources and their distribution. Energy crisis, if monsoon is known to be the energy released by the sun. Energy crisis, monsoon mechanism distorting, monsoon mechanism low level का जा रहा है, energy crisis हो गया है, mechanism ठीक से बनेगा नहीं. और हमने कहा था it is affecting the entire economic system.
तो जब भी एनर्जी क्राइसिस होगा वो इकोनॉमिक सिस्टम को अफेक्ट करेगा। इसलिए लास्ट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में क्या पूछा गया था, व्हाट द स्टेट नीड टू डू और अडॉप्ट टू द स्ट्रेटेजी। तो एनर्जी क्राइसिस को चेक करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो उसके लिए हमें एनर्जी क्राइसिस को पढ़ना पड़ता है। वर्ल्ड एग्रीकल्चर नहीं पढ़ना है, लिमिट टू ग्रोथ नहीं पढ़ना है, टाइपोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर नहीं पढ़ना है, फिर 7th 8th 9th 10th पढ़ना है। एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड द प्रोडक्टिविटी, इनपुट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड रिलेटेड प्रोडक्टिविटी। जितना अच्छा एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतनी अच्छी उसकी प्रोडक्टिविटी होगी। तो अगर इनपुट्स अच्छा है तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। तो इनपुट्स कौन कौन से होने चाहिए, फूड एंड द न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, फूड सिक्योरिटी, फेमाइन कॉजेज इफेक्ट एंड द रेमेडीज, यस। वर्ल्ड इंडस्ट्रीज, लोकेशन पैटर्न द प्रॉब्लम, वो तो सिलेबस में दे रखा है। वर्ल्ड इंडस्ट्रीज की लोकेशन को लेकर प्राइमरी, सेकेंडरी और द टर्शरी, यस यस। पैटर्न्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, यस। पैटर्न्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड को आपको इस पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। ये प्योरली तो जीएस का पेपर नहीं है, लेकिन अगर आप रिसेंट कंट्रोवर्सी देखेंगे किस किस में, इंडिया और मालदीव्स में, तो इंडिया ने अभी तक मालदीव का स्ट्रैंगुलेशन नहीं करा है डिस्पाइट दिस सो मच एडवर्स स्टेटमेंट अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। क्यों? स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना भाई उसकी, कहाँ पर, इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन क्या है, अब प्रेजेंट और फ्यूचर का ट्रेड रूट है, और जो इंडियन ओशन को रूल करेगा वो वर्ल्ड ऑर्डर पे रूल करेगा, क्योंकि ट्रेड उसके हाथ में होगा। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंडियन ओशियन कंट्री, एंड दैट्स व्हाई वी नीड मालदीव्स इन आवर फेवर। हमें मालदीव को अपने फेवर में रखना होगा ही। इसलिए पैटर्न्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड को करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट, पॉपुलेशन द सेटलमेंट, डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स पढ़ना पड़ेगा। इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड, कॉजेज एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द माइग्रेशन। रीजनल और ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया का जो रीजनल माइग्रेशन डिवीजन है उसको हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें माइग्रेशन को स्टडी करना पड़ेगा। पॉपुलेशन एज अ सोशल कैपिटल, यस, पॉपुलेशन इज वेरी मच सोशल कैपिटल। टाइप्स एंड द पैटर्न्स ऑफ द रूरल सेटलमेंट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन में देखा ना अर्बन रूरल इंटीग्रेशन। तो अगर रूरल का इंटीग्रेशन अर्बन के साथ करना पड़ेगा तो अर्बन के पॉपुलेशन सेटलमेंट को पढ़ना पड़ेगा ना। अगर पढ़ना पड़ेगा तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना। तो ये जीएस ऑप्शनल का, वो ज्योग्राफी ऑप्शनल का तो नहीं है ना, ज्योग्राफी जीएस का भी बनता है ना। हाँ सर बनता है, बिल्कुल बनता है। बहुत मेजर सा डिफरेंस, माइनर सा डिफरेंस है ज्योग्राफी जीएस और ऑप्शनल के सिलेबस को लेके। 70% ज्योग्राफी का सिलेबस ऑप्शनल से आता है सारा का सारा, 30% लेफ्ट ओवर बचता है। एनवायरमेंट इश्यूज इन द रूरल सेटलमेंट, हाँ करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा। हायरार्की ऑफ द अर्बन सेटलमेंट, अगर अर्बन सेटलमेंट की हायरार्की हमने करेक्ट कर ली तो हीट आइलैंड बनने से रोके जा सकते हैं। हाँ सर रोके जा सकते हैं। तो क्या पढ़ना पड़ेगा? हाँ तो सर पढ़ना ही पड़ेगा, फिर और क्या करा जाएगा, पढ़ेंगे। आप जो बोलोगे सब पढ़वा दोगे, आप तो कुछ छोड़ रहे हो क्या? मैंने हाँ 30% छोड़ रहा हूँ। आगे की बात करते हैं। द प्रॉब्लम्स आर द रेमेडीज ऑफ द अर्बनाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये तो बैकबोन है यूपीएससी के इस समय, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द सिटीज। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिस्पेक्ट ऑफ द सिटीज, हाँ सर पढ़ना पड़ेगा। रीजनल प्लानिंग ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से है, नहीं पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट, रीजनल प्लानिंग वो वाली नहीं है, इसमें कुछ अलग से थ्योरीज वगैरह कॉन्सेप्ट वगैरह दे रखी है। कभी आप समझोगे सर क्वेश्चन से रिलेट कर सकता है, ऐसा नहीं है। मॉडल थ्योरीज एंड द लॉज इन द ह्यूमन ज्योग्राफी कंप्लीटली ऑप्शनल को लेकर है, जीएस में नहीं पढ़ना है। आगे की ओर आ जाइए। इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल सेटिंग, यस। रिसोर्सेज, यस। एग्रीकल्चर, यस। इंडस्ट्री, यस। ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन, यस। कल्चरल सेटिंग, यस। सेटलमेंट, यस। रीजनल डेवलपमेंट इन द प्लानिंग, यस। पॉलिटिकल एस्पेक्ट, यस। कंटेम्प्रेरी इशू, यस। एक क्वेश्चन था हमारे पास लिंग्विस्टिक रीजन्स का, राइट। आप कहते सर आर्ट और कल्चर में हो सकता है क्या ये, या किसी ने कहा, तो मैंने कहा ये रहा इसका आंसर, कल्चरल सेटिंग्स। लैंग्वेज किसका पार्ट है? कल्चर का। जितने भी कल्चर्स होते हैं अपनी लैंग्वेज को डेवलप करते हैं ना। हिब्रू लैंग्वेज किसकी? इजराइल की। जब इजराइल के लोगों ने, यहूदियों ने ज़ायोनिज्म का मूवमेंट चलाया तो उसमें उन्होंने जो कम्युनिकेशन पॉइंट बनाया वो अपनी लैंग्वेज को बनाया। लैंग्वेज कौन सी? हिब्रू लैंग्वेज। उन्होंने कहा वर्ल्ड के किसी भी कोने से जो यहूदी आएंगे, जिनको हिब्रू आती है और जिनको हिब्रू नहीं आती है, वो हिब्रू जानने वाले हिब्रू ना जानने वाले को हिब्रू बताएंगे। हम अपनी भाषा में बात करेंगे, क्योंकि हमारी भाषा ही will be the foundation stone of our nation, desired nation, the future nation, and that nation is in the present, and name is Israel. भाषा के आधार पर राष्ट्र संगठित होते हैं।
भारत एक ऐसा देश में इसमें राष्ट्रभाषा नहीं बन पाती है अभी तक। रीजनल डिस्पैरिटी, और रीजनल डिस्पैरिटी नहीं है, पॉलिटिकल डिस्पैरिटी है। यहाँ पे सरकार को हमने माई बाप बना के अपने जो सर पे बैठा रखा है ना, उसका कारण है कि हम जातिवाद क्षेत्रवाद में फंसे पड़े हैं। नहीं तो एक राष्ट्र के रूप में हम क्यों नहीं काम कर सकते, मैं आज तक ये समझ नहीं पा रहा हूँ। ये बात किसी और दिन हो जाएगी जब हम पॉलिटिको का भी देखेंगे समझेंगे तो, ये क्योंकि पॉलिटिकल एस्पेक्ट का क्वेश्चन है। कंटेम्प्रेरी इश्यूज, और हाँ कंटेम्प्रेरी इशू दैट मीन्स करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स। और मैंने आपसे कहा था जो हमारी अप्रोचेस है क्वेश्चन के ब्लेंड वाली, उसमें 70% क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, तो 70% क्वेश्चन जो रिलेट करे जा रहे हैं वो करंट अफेयर से रिलेट करे जा रहे हैं। ठीक है, अब हम सेक्शनल डिवीजन पे एक बार फिर से आ जाते हैं, और सेक्शनल डिवीजन पे जब हम देखेंगे तो हमारे पास जनरल ज्योग्राफी पूरा हो गया सर। मैपिंग 100%, बायोजोग्राफी 100%, एनवायरनमेंट 100%, फिजिकल ज्योग्राफी 100%, ह्यूमन ज्योग्राफी नहीं थी हमारे पास, कट करा था हमने। पॉपुलेशन 50% हो गया था हमारे पास। रीजनल प्लानिंग नहीं करा था हमारे पास, मॉडर्न थ्योरी नहीं करा था। इंडियन ज्योग्राफी हमारे पास पूरी हो गई। कितने सेक्शन हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5, फिर हमारे पास हो गया 5.5 और 6, और इस प्रकार से 6.5 यानी कि 7, तो हमारे पास 70% सिलेबस जीएस ज्योग्राफी का ऑप्शनल से आता है। इस प्रकार से डिवीजन कैटेगराइजेशन होता है। 30% सिलेबस ही हमारे पास रेस्ट हाउस बचता है, किसका, ज्योग्राफी ऑप्शनल का। ये था कैटेगराइजेशन, सिलेबस, इंट्रोडक्शन। अब कैसे करेंगे, पढ़ना तो पड़ेगा ना। अब बात पढ़ने वाली अप्रोच की जाएगी, तो पढ़ा कैसे जाएगा, तो पढ़ा ऐसे जाएगा। 99 नोट्स की बात हो जाएगी अब हम, कि हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। क्या करेंगे, पहले हम जनरल ज्योग्राफी करेंगे। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ ना हम लोग कैसे करेंगे। तो हम किस अप्रोच के साथ आए, तो हमारी अप्रोच थी ये, क्या थी हमारी अप्रोच, ये वाली। कौन सी वाली, कि हम क्या कर रहे हैं, 15 मिनट्स की लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। राइट, 15 मिनट की लेक्चर सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। 15 मिनट्स लेक्चर सीरीज़ यानी कि हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। हम ज्योग्राफी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे पहले, और जब हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हमारी अप्रोच 99 नोट्स की क्या अप्रोच रहेगी, तो अप्रोच ये रहेगी हमारी। क्या अप्रोच रहेगी, ये वाली। हम क्या करेंगे, पहले करेंगे जनरल ज्योग्राफी, हैंडशेक करेंगे ज्योग्राफी के साथ, that we are here to introduce ourselves to you and to get your introduction to ourselves, and that's how we are having handshake, so we can further establish our communication link for what, for the coordination. General geography covering class 6 NCERT, class 11 fundamental of the physical geography और the Indian geography। इसको कवर करने के बाद हम क्लास 11 की फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी करेंगे, और फिर क्लास 11 की इंडियन ज्योग्राफी कवर अप करेंगे। फिर जो ब्लर या वेक पॉइंट रह जाएंगे उससे जीसी लॉन्ग की सहायता उससे ली जाएगी। यहाँ पे भी कॉन्सेप्चुअल वाइज चलेंगे, और उसके बाद हम जीएस ज्योग्राफी के सिलेबस को एंटायरली यहाँ से कवर करेंगे टॉपिक वाइज। और उसके बाद जो रेस्ट 30% का सिलेबस होगा, दैट इज़ द ज्योग्राफी ऑप्शनल, हम उसको वहाँ के लिए कवर करने वाले हैं। और इस प्रकार से हम 99 नोट्स को कवर करेंगे। जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा, हर टॉपिक के लास्ट में, टॉपिक के स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द लेक्चर करेंगे। क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ लेक्चर। और जब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम पी वाइज क्यूज देखेंगे, प्री और मीन्स, प्री प्लस मीन्स। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ। स्ट्रक्चर ऑफ लेक्चर्स के साथ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेक्चर एंड वी आर एंडिंग विद द पी वाइज क्यूज इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्री एंड द मीन्स ऑफ एवरी लेक्चर। हाँ, जो पी वाइज क्यूज होंगे, अगर कोई लेक्चर सेक्शन, कोई कॉन्सेप्ट सेक्शंस में डिवीजन होकर आ रहा है, जैसे कि सोलर सिस्टम में हमारे कई सारे सेक्शंस लग जाएंगे, तो जब हम सारे सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे तो लास्ट एक सेक्शन उसके लिए पी वाइज क्यूज के लिए हम वहाँ पर रखने वाले हैं। और इस प्रकार से हम 99 नोट्स पर अपनी ज्योग्राफी की स्टडी को कंप्लीट करेंगे। और 99 नोट्स क्या करता है, तो ज्योग्राफी या किसी भी डिसिप्लिन को हम स्टडी करते हैं स्मार्टनेस के साथ। दैट्स वाई the 99 notes study smart is the new venture for the future aspirant of civil services।
जो नए अधिकारी बनने वाले हैं यूपीएससी के थ्रू या स्टेट पीसीएस के थ्रू, उनके लिए है हम नया वेंचर। और इसी इंट्रोडक्शन लेक्चर्स के साथ हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपनी जनरल ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। और पहला लेक्चर हम क्या लेंगे, तो पहला लेक्चर लेंगे हम सोलर सिस्टम का, जहाँ पर हम पहले से कंपोजिशन को स्टडी करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए 99 नोट्स के साथ, और अभी के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद एंड वंदे मातरम।